کی بار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں بھی تاج الاولیاء یہ مجذوب صفت اور اس طرح جس کو کہتے ہیں کلندرانہ عادت ہے، جسے دنیا و مافیا سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن در حقیقت انہی کی اس وقت حکومت بھی چلتی رہتی، حکومتوں سے بے نیاز لیکن حکومتیں بانٹنے والی یہی ان کی عادتیں ایسی۔ ایک صاحب مدراس سے آئے اور غریب تھے، تاج الاولیاء کے پاس میں نے پڑھا کافی پہلے ہی، آ کر کے کہا کہ حضور حج پہ جانا ہے، آپ کے پاس بڑے بڑے سیٹ لوگ آتے ہیں، راجے مہاراجے آتے ہیں، کسی سے پیسے دلواؤ اور مجھے حج کروا دو۔ بہت سارے لوگ نظر و نیاز دیتے ہیں، وہ اتنی ساری نظریں آپ بانٹ دیتے ہیں، میرے حج کے پیسوں کا انتظام کر دو۔ مرید دیوانے ہوتے ہیں جو حقیقت میں ہوتے ہیں۔ پکڑ لیا، بابا نے کہا ٹھیک ہے رہ جاؤ، یہیں پر رہو۔ کئی دن گزر گئے، کئی نذرانے بھی آئے، اور جب جب نذرانے آئے پورے آپ بانٹ دیں۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، موٹے موٹے پیسے والے سارے چیزیں آئے، سب غربا مساکین میں بانٹ دیتے، میرے ایک کا حج کرا دے تو بابا کو کیا ہوگا، کیا کمی ہوگی۔ حج کا مہینہ آ گیا، بلکہ فرماتے ہیں وہ صاحب فرماتے حج کا مہینہ شروع ہوا، سارے حاجی جا چکے تھے، اب حج کے دن بھی شروع ہوئے، میں تو مایوس ہوا اب کیا پہنچا ہے۔ لیکن جو کلندر کا کلندر ہوتا ہے وہ یقین ان کلندروں پر رکھتا بھی ہے۔ اس کے بعد وہ قدم پکڑتے اور کہتے ہیں اس سال کا حج تو چلا گیا، اگلے سال آپ پکا وعدہ کریں کہ مجھے بھیجیں گے۔ تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسکرائے اور اس کی پیٹھ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، پیٹھ پر مارا، آنکھ بند ہو گئی۔ فرماتے ہیں ایک نیم کے درخت کے نیچے میں بیٹھا تھا، اچانک میں دیکھتا ہوں کہ میں عرفات کے میدان میں پہنچا ہوں، عرفات کے میدان میں پہنچا ہوں، سارے حاجی احرام میں ہیں، میں احرام کے حالت میں ہوں، حج کے ارکان میں ادا کر رہا ہوں، تلبیہ پڑھا، کنکریاں مارا، طواف کیا، اور پھر میں نے جو ارکان حج تھے پورے ادا کیا، یہاں تک کہ سارے حاجی واپس آنے لگے۔ اس میں پتہ نہیں کتنا عرصہ بیت گیا، دل بھر کر کے میں نے طواف کعبہ کیا، دل بھر کر کے زمزم پیا، ساری چیزیں کیا، اور اس کے بعد زمانہ بیتنے لگا۔ اچانک بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے پاس آئے اور پھر سے ایک تھپڑ رسید کیا، میں اسی نیم کے درخت کے نیچے سویا ہوا ہوں۔ فرمانے لگے کب تک یہاں پڑا رہے گا، حج ہوا چل باقی آگے آگے چل۔ اللہ اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ وہ صاحب خود فرماتے ہیں میں اس راز کو نہیں سمجھ پاتا تھا، میں تو سوچتا تھا کہ کوئی نذرانے والا مجھے حج کو پہنچا دے، لیکن ان اولیاء کو نہ مال کی ضرورت ہے نہ نذرانوں کی ضرورت ہے، ان کی نظر ہی اتنی کافی ہے کہ ناگپور میں بیٹھے تو خانہ کعبہ تک بھی پہنچا۔ زندہ باد زندہ باد حق ہے۔ یہ تاج الورا اور وہ تاج الاولیاء، یہ تاج الاولیاء اور وہ غوث الورا، یہ اولیاء کاملین کے مقامات ہیں میرے عزیزوں۔ میں تھوڑی باتیں سلطان الاولیاء کی ذات پاک پر عرض کر کے آگے رخصت ہوتا ہوں۔ سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے طالب علمی کو دیکھیں، دونوں بھی شخصیتوں کے لیے ایک کامن چیز ملتی ہے، غوث پاک شریعت اور طریقت کے سنگم تھے، اسی طرح تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شریعت اور طریقت کے سنگم تھے۔ شریعت بھی آپ کے یہاں ہے، طریقت بھی آپ کے یہاں ہے، اگر شریعت نہ ہوتی تو کبھی مفتی عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے یہاں نہیں بلاتے، نہ ان کو مسند افتاء پر بٹھاتے۔ وہ جاہل ہیں جو مشہور کرتے ہیں کہ اولیاء کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، وہ خود ہی جاہل ہیں۔ اولیاء کاملین تو حقیقت میں شریعت کے سمندر ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں ما کان اللہ من ولی جاہلا ولو کان لعلمہ اللہ اولا، اللہ کا کوئی ولی جاہل نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کے پاس اگر پڑھا نہیں ہے اللہ خود اسے پہلے پڑھاتا ہے، پہلے اسے علم دیتا ہے پھر ولایت دیتا ہے۔ تو کسی ولی کے بارے میں مت سمجھنا یہ کسی مدرسے کو نہیں گئے، کسی کے پاس مولانا کے پاس نہیں بیٹھے، اللہ رب العزت بعض اولیاء کو علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شریعت کے اور طریقت کے سنگم تھے، اسی طرح سیدی غوث الورا سلطان الاولیاء شریعت اور طریقت کے بحر ذخار تھے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے سچے اولیاء کے عاشقین وہ ہیں جو شریعت کو بھی پاس رکھتے ہیں، طریقت کو بھی پاس رکھتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، کچھ لوگ اگر گمراہ کریں کہ نہیں طریقت کی طرف مت جاؤ، سب شریعت دیکھو، وہ فاسق بنا دیں گے تمہیں، فاسق بنا دیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو صرف شریعت پڑھتا رہا اور طریقت کی کوئی بات نہیں سیکھا وہ فاسق ہو جائے، اور جو شریعت کو چھوڑ کر طریقت کی بڑی بڑی باتیں پڑھنے کے لیے آیا تو وہ تو زندیق بن جائے گا، شیطان بن جائے گا، شیطان اسے گمراہ کر دے گا۔ اور جو دونوں کو جمع کر دیا وہ اللہ تک پہنچ گیا، وہ رب تک پہنچ گیا، کیونکہ میرے عزیز شریعت مولانا لوگوں کی نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول پاک کی ہے، اور اس دروازے کو چھوڑ کر رب کی معرفت کہاں سے ہوگی؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مکر جو یہاں جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کیا کہنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ در حقیقت میرے آقا کا دروازہ ہے، یہ چھوڑ کر معرفت تک نہیں پہنچ سکو گے۔ یہ زبان کی تاثیر کیسے آتی ہے؟ یہ زبان کی تاثیر کیسے آئے گی؟ اولیاء کی زبان میں جو ہوتی، بابا جو بولتے تھے تاج الاولیاء، بولنے کی دیر نہیں ہوتی تھی کہ کام ہو جاتا تھا۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ ناگپور والے اگر تاج بابا کو نہ سنے ہو تو سب سے بڑی جہالت ہے، سب سے بڑی جہالت ہے۔ آپ جو فرماتے، حتیٰ کہ ایک عورت آئی، ایک صاحب ہے وہ کہتے ہیں میری بیوی بہت ہی بیمار ہوئی، لا علاج مرض میں مبتلا تھی، ڈاکٹروں نے کہا کہ جو کھائے کھلا دو پلا دو، ہو گیا اس کا ٹریٹمنٹ ختم ہو گیا۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں میں اپنی کمزور عورت کو لے کر کے بابا کے پاس آیا، بابا نے دیکھا اور ان کی جو زبان ہوتی ہے ہو جی ہو جی، آپ نے فرمایا ابھی نہیں مرتے، ٹھنڈے کھاتے ٹھنڈے پیتے اور جیتے، اتنا فرمایا۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں دیکھا میری بیوی بالکل صحت مند ہے اور اٹھی، کئی سال جی، آپ کی زبان سے ابھی نکلا، سارے اطباء نے کہا لا علاج ہے، اور اس کلندر کی زبان سے نکلا سارا علاج ہوا۔ زبان کی تاثیر آتی کیسے؟ ایک بات یاد رکھیں، زبان میں جو تاثیر آتی ہے یہ اولیاء جو بولتے ہیں،
जुमले बोले और असर हो जाए, हम हजार बोले कुछ ना असर हो। हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में एक साहब आए, कहा कि हुजूर मेरी बेटी की शादी है, कुछ कर दे। कहा जा कुछ पत्थर ढेला लेके आ जा, कुछ मिले। वो कहते मैं 3 ढेले लेके आया, 1 ढेला 2 ढेले 3 ढेले जो भी ले आए। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने 3 बार कुल वल्लाह पढ़ा, उस पर दम कर दी, ले जा तेरी बेटी की शादी कर। और दिया इसने जी। कहा मैं ढेले लिया तो देखा वो सोना बने हुए थे, सोने के थे। बेचा तो इतना माल आया कि बड़ी शादी भी नचाई, घर भी खरीदा। लेकिन वो साहब कहते हैं नुस्खा तो मिल गया था, सामने देखा था 3 बार कुल वल्लाह तो पढ़ना, घर में जाकर बहुत सारे ढेले जमा कर लिए और रात भर बैठ करके कुल वल्लाह कुल वल्लाह कुल वल्लाह पढ़ता रहा। 1000 बार हो गया, बार बार आंख खोल के देखे तो ढेला ही है। दूसरे दिन आया, कंफ्यूजन तो नहीं हो गया, सुनने में मुझे गलती तो नहीं हुई? पूछा बाबा महबूब इलाही से, मैं आया था आपके पास एक बार, आपने ढेले पर क्या पढ़ा था? कहा कुल वल्लाह पढ़ा था। कहा कितनी बार पढ़ा था आपने? कहा 3 बार। अजीब बात है, मैं 1000 बार पढ़ा, ढेला कुछ भी नहीं बदल रहा। महबूब इलाही ने फरमाया बस तेरी जुबान और है मेरी जुबान और है, तेरी जुबान अलग है मेरी जुबान अलग है। उसको एक मैं अकली मिसाल से अगर समझा दूं, अकल की आने वाली मिसाल, आप देखें बंदूक की गोली मुश्किल से 50 ग्राम की होती है, 100 ग्राम की समझ लें। देखा होगा या नहीं देखा होगा पता नहीं, आपने पीतल की हो तांबे की हो जिसकी भी हो, वो बंदूक की गोली 50 ग्राम की 100 ग्राम की लो हाथ में, आप उठा करके देख ले और हाथ में लेकर किसी को मारो, मर जाएगा आदमी, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी चोट लगेगी, इतना ही होगा ना। लेकिन उसी गोली को बंदूक में रख के मारो, फिर तो वो जान से हाथ हो बैठेगा। तो मेरे हाथ की क्या गलती थी? बात यही की है कि बंदूक में वो कमाल है कि बारूद को वो आग बना डालती है, मेरे हाथ में वो चीज नहीं। इसी तरह हमारी जुबानें और हैं जो जुमले बोलती हैं और उनकी जुबानों से जो जुमले निकलते हैं, कभी वो सोना बनाती कभी चांदी बनाती। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए वो पत्थरों को भी देखा उन्होंने तो गौहरे नायाब बनाया, जाहिलों को देखा तो आलिम बाअमल बनाया, दुर्वेश फकीर को देखा तो अमीर गनी बनाया, और फिर किसी आम को देखा तो विलायत के मकाम को भी पहुंचाया। अजीज़ान गिरामी, गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये जुबान की तासीर, औलिया की जुबान की तासीर, मैं ये कह रहा था कैसे आती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 2 चीजें तुम पाबंदी कर लो, तुम्हारी हर दुआ कबूल हो जाए। 2 चीजें, ये एक सहाबी को हुजूर ने तालीम दी। उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह कौन सी चीज आप बता दें? फरमाया मेरे आका ने हलाल खाओ सच बोलो, हलाल खाओ सच बोलो। 2 चीजें तुम पाबंदी कर लो, फिर देखो तुम्हारी जुबान में तासीर कितनी आती है। जिस जुबान से हराम लुकमा चला गया हो, जुबान की तासीर खत्म। जिस जुबान पर झूठ, गाली गलौज, चुगली, गीबत, उसकी तासीर कहां से आएगी? या औलिया कामिलीन है जो अपने होश और हवास से लेकर अपने आखिर उम्र तक हराम लुकमा तो दूर की बात है, शुबा वाली चीज से भी बचते थे, शुबा वाली चीज से भी। और इनकी जुबानों से झूठ तो दरकिनार है, ये मजाक भी किसी के साथ नहीं करते। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए जुबान की वो तासीर थी कि गुफ्ता खुदा बुअत, क्या उनका कहना अल्लाह का कहना हो जाता है। इसी तरह की बातें हमने ताजुल औलिया की भी पढ़ी। एक साहब लिखते हैं कि हम महाराजा बाग यहाँ इलाका टांगे में सफर कर रहे थे ताज बाबा के साथ। टांगे वाले को अचानक कहा चल रे गाड़ी बढ़ा काबुल कंधार की तरफ। काबुल कंधार कहाँ है? अफगानिस्तान में। कहा गाड़ी बढ़ा काबुल कंधार की तरफ। साहब कहते हैं अचानक मैं देखा गाड़ी बढ़ती बढ़ती आई, अफगान में हम पहुंचे, काबुल कंधार में चल रहे हैं। बाबा एक जगह गाड़ी रुकाए और एक घर के सामने रुकाए, 3 लोग अंदर से आए, तीनों से आपने बात किया। और कौन सी जुबान में बात किया? साहब कहते मुझे कुछ समझ में नहीं आया। गाड़ी से ही बात किया, उन्हें कुछ समझाया और फिर टांगे वाले को कहा चल रहे फिर नागपुर की तरफ। वापस निकले तो वो साहब फरमाते मैं देख रहा हूं कि फिर यहाँ ताजाबाद में, फिर यहाँ महाराजा बाग के पास है। इस वाक़े को कहते हैं टांगा गया भी आया भी, बातचीत भी हुई, मिनट भी नहीं गुजरा था, मिनट भी नहीं गुजरा था। यह है तय जमान और तय मकान की करामात कि अल्लाह इनके लिए जमीन को घेर देता है, वक्त को लपेट देता है। एक दो नहीं मेरे अजीजों, बेशुमार करामत है। हकीकी बात अगर मैं बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह काफी औलिया काफी सलासिल को मैंने पढ़ा हिंदुस्तान के मशाइख और औलिया में। वो सरकार गरीब नवाज की करामात और कुछ मशाइख चिश्ती की करामात के बाद सबसे ज्यादा करामात अगर मैंने किसी की पढ़ी है तो ताजुल औलिया की। हुजूर ताजुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह मजज़ूब थे, लेकिन एक दिन में न जाने कितनी करामात का जोर करते थे, एक दिन में कितनी करामात का जोर करते थे। बल्कि एक साहब वो फरमाते हैं कि मैं पुलिस में नौकरी करता था और नौकरी करते करते मैं हांगकांग चला गया, फिर ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका चला गया। मेरे साथ यहाँ का एक नौजवान भी था, जंगे हुई, वापस आया, वापस में आ गया, वो नौजवान नहीं आया। तो उस नौजवान की मां को जब पता चला कि ये साहब आए हैं तो वो रोती हुई बाबा के पास आई, कदम पकड़ लिया, कहा कि बाबा मेरा बेटा नहीं आया, अंग्रेजों की फौज में था या पुलिस ड्यूटी पर था, गया था हांगकांग या फिर अमेरिका वगैरह लंदन गया, आया नहीं, वापस नहीं आया। हज़रत ताज बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह से वो कहने लगी जब तक मेरा बेटा दोगे नहीं मैं यहाँ से जाऊंगी, जब तक नहीं लौटाओगे मैं नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है शहर नागपुर वाले ये अदा अगर भूल गए हो तो वापस पकड़ लो, हाजत आ जाए चादर पकड़कर बैठ जाओ, जब तक ये ना हो जाए उठूंगा नहीं। बेशक देखना आज भी वो करामात जिंदा है। बेशक बेशक। वो खातून बैठी, उसके बाद रोती रही। ताज बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते ए दीवानी उठ, वो नीम के दरख्त के साथ सामने जा, देख कौन सोया है। वो औरत आती है, देखा वो नीम के दरख्त के नीचे उसका जवान बेटा सोया हुआ, जो कहां से अमेरिका से वापस नहीं आया था। उसको उठाया, चिमटाया, गले से लगाया, पूछा तू कहां था मेरे अजीज, मेरे लाल, इतने दिन गायब हो गया। वो लड़का कहने लगा मां
जंग में शरीक हुआ था। हांगकांग की जंग के बाद मैं जर्मनी चला गया। मैंने सोचा कि वहां कुछ दिन गुजार लूं। होटल में वहां पर कुछ खा रहा था, एक बुजुर्ग आए और वो बुजुर्ग कलंदर सिफत से मुझे एक तमाचा मारा और कहा, अरे लड़के तू यहाँ अयाशी कर रहा है, तेरी माँ तेरे घर पर रो रही है। मैं डर गया, ये बाबा यहाँ जर्मनी में कहां से आए, कौन बाबा है? तो मैंने कहा कि मेरी माँ रो रही है, मैं कैसे जाऊं, अभी इतनी जल्दी कैसे जा सकता हूं? तो उन्होंने मेरे पीठ पर मारा तो मेरी आंख बंद हो गई और मुझे गशी आ गई। अब मैं उठाऊं तो देख रहा हूं ये दरख्त है और तुम मेरे सामने खड़ी हो। वो खातून कहती है, चल मैं तुझे दिखाऊं कौन बाबा जर्मनी में आया था। हाथ पकड़ करके लाई, ताज बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में। वो लड़का चीख पड़ा, हाँ यही तो वहां पर आए थे, वहां से लाए। या औलिया है पल भर में। इसीलिए मैंने कहा, जहां में अहले ईमान मिस्ले खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। इनकी सिफात है मेरे अजीजों। औलिया कामिलीन की इन जिंदगियों के बाद एक मैसेज मैं आप देना चाहूंगा। वक्त शायद काफी हो गया है, मैं समेट करके सुल्तानुल औलिया गौसुल आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ताजुल औलिया के इन फयूज से बरकतें हासिल करते हुए, ए हाजिरीन बज़्म, उलमा, हम सब आज की हमारी जिम्मेदारी ये है कि इनकी शान में अल्लाह ने एक जुमला फरमाया कुरान, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बार बार सुनते ना आयत आप, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक खबरदार, अल्लाह के वलियों को ना दुनिया में किसी का खौफ होता है, ना आखिरत में कोई गम होता है। कोई खौफ नहीं होता। क्यों नहीं होता इनको खौफ? सोचा आपने कभी क्यों नहीं इनको खौफ होता है? एक बात याद रखें, बेटा जब तक बाप के साथ रहता है छोटे में, और बाप आस पास है, माँ आस पास है, बच्चा किसी से नहीं डरता। बाप जहां छूटा, माँ जहां छूटी, बच्चा बाजार में रोने लग जाता है। होता है कि बचपन में हम भी कहीं छूट गए तो धाड़े मार मार कर रोते थे, पता नहीं कौन पकड़ेगा, क्या करेगा। हमारे माँ बाप थोड़ी देर के लिए भी छूट गए, जब बड़े हमसे छूट जाए हम रोते हैं, हर चीज से रोते। सुनो आज या औलिया किसी से, ये बिला तशबीह बिला तमसील, औलिया कामिलीन इनकी जुबान पर हमेशा एक नारा रहता था, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और जिसने उसको सबसे बड़ा समझा, और जब तक उसकी निगाह इनायत के सामने है, इनके तस्वुरात में ये होता, सबसे बड़ा जो है मैं उसकी नजरों के सामने चल रहा हूं, वो मुझे देख रहा है। जब बड़ा साथ हो तो फिर दुनिया में किसी का डर नहीं होता। जैसे बच्चा नहीं डरता, और जहां बड़े को छोड़ दिया हर चीज से डर लगता है, फिर हर चीज से खौफ होता है। आज हम डरे इसीलिए हैं, कहते हैं मस्जिदों में अल्लाहु अकबर, बाहर आकर के फिर पता नहीं किसी और को बड़ा मान लेते हैं। मेरे अजीजों, एक बात याद रखना, ये लफ्ज ऐसा है कि जिस दिन हम अपने माँ के पेट से आए थे दुनिया में, सबसे पहला लफ्ज हमारे कानों में अल्लाहु अकबर यही कहा गया था। आपको भी आजान दी गई होगी, हमें भी आजान दी गई। सबसे पहला जुमला भी ये सिखाया गया, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। क्यों? उसी दिन तुम्हें मुसलमानों को ये पावर कराया जाता है, ए बच्चे आने वाले, किसी और को बड़ा मत समझना, किसी का खौफ न रखना, इसलिए कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन होश आती बच्चा भूल जाता है। अगर वो अल्लाह अकबर की गूंज उसकी जिंदगी भर जारी रही, कभी उसे किसी का खौफ नहीं आएगा। देखना, हमारी जिंदगी अल्लाह अकबर से शुरू होती है, और जनाजे पर भी इमाम सबसे पहले अल्लाह अकबर ही कहता। हमारे जनाजे पर अल्लाह अकबर कहकर की तकबीर बांधी जाती है। दोनों, जिंदगी की शुरुआत और जिंदगी का इख्तिताम अल्लाह अकबर पर है। ये मैं समझाना चाहता हूं, आज किसी और को बड़ा न समझो। नशे में चूर अगर 5 साल के लिए कोई तख्त मिल गया हो किसी को, वो फिरौन हो सकता है लेकिन अल्लाह नहीं हो सकता, नमरूद हो सकता है लेकिन खुदा नहीं हो सकता। याद रखो, हम अल्लाह अकबर कहने वाले हैं। अरे हमारे दरमियान मुगल बादशाहों में से नाम का अकबर आया तो हम उसे अकबर नहीं कहते। तो अगर तुम तो पूरे पैदाइशी नमरूद नजर आते हो, हम कैसे तुम्हें अकबर मान लें? हम कैसे अकबर मान लें? एक बात याद रखें, मुसलमान पैदाइश से लेकर मौत तक अल्लाह को अकबर कहता है, अकबर। और इतना ही नहीं, बच्चे को क्यों ये अजान सुनाई गई थी? बताया आपको क्यों? जब पैदा हुए थे आप, क्यों अजान सुनाई गई थी? इसलिए कि ए बच्चे, अभी से आदत डाल ले, हर दिन तुझे 5 बार ये पुकारा जाएगा। 5 बार अजानों में मुअज्जिन पुकारेगा, ताकि तुझे उस आवाज से वहशत ना हो, तुझे लगे कि ये तो वही आवाज है जो पहले दिन मैंने सुना था। ये तो वही आवाज है। मैं उन लोगों से कहता हूं जो अजानें सुन करके भी गाफिल हैं, ए नादानो, तुम अपनी पैदाइशी आवाज को सुनकर गाफिल हो। पैदाइशी आवाज है तुम्हारी, जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन की आवाज है। इस अजान का एहतराम करो। जैसे पुकारा जाए, ये सोचो मेरे मौला ने मुझे बुलाया, जल्दी जाना। जहां बीवी बुलाती है तो दुकान बंद करके जाते हो, कोई सेठ बुलाए तो काम छोड़ के भागते हो, जब रब बुलाए तो तुम नहीं जा सकते, रब बुलाए तो नहीं जा सकते। अज़ीज़ान गिरामी, आज अमल की बुनियाद पर यह मैं बात जरूर करूंगा। ये जितना खौफ और डर हमारे दिलों में आ रहा है, इमाम गज़ाली लिखते हैं कि 2 खौफ एक दिल में नहीं आ सकते, 2 खौफ एक दिल में जमा नहीं हो सकते। या तो तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ आएगा तो दुनिया का खौफ नहीं आएगा, और अगर दुनिया का खौफ है तो अल्लाह का खौफ नहीं आएगा। अल्लाह से नहीं डरोगे, फिर दुनिया का खौफ अगर है तो अल्लाह का खौफ नहीं आएगा। पता नहीं ये क्या कर लेगा, वो क्या कर लेगा, वो मारेगा, ये मारेगा, ये सारे खौफ रहेंगे, अल्लाह का खौफ नहीं आएगा। और जिसके सीने में अल्लाह का खौफ हो, वो ताजुल औलिया है, वो गौसुल वरा है। वक्त के सलातीन को भी वो ठोकरों पर रखते थे, कुछ नहीं बिगाड़ सके इनका। हुकूमतें आई गई, सब बदलती रही। बल्कि एक रिवायत तो मैंने ये भी पढ़ा है, अमेरिका की सरजमीन पर कोई एक साहब थे, वो बाबा के बड़े आशिक थे, आपकी तस्वीर अपने घर में लगाए हुए थे। वहां काम करने वाला एक दिन काम करते हुए डर के भागा। काम करते करते मालिक ने बुला करके पूछा क्या हुआ? कहा कचरा झाड़ रहा था, वो तस्वीर बात कर रही है, वो तस्वीर बात कर रही है। तो वो घबरा गया। वो बाबा के जो मुरीद थे वो समझ गए
کہ ہاں وہ بات کیوں نہیں کرے گی, وہ قیامت تک بات کرے گی, قیامت تک بات کرے گی. یہ اولیاء کاملین جن کو اللہ نے یہ تصرف اور اختیار جو عطا کیا ہے میرے عزیزوں, انہوں نے اپنے خوف کو خشیت الہی سے بھرا تھا.